हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो ये है मेरे पास एचपीटेट मेडिकल की केमिस्ट्री सेक्शन। 3 सेक्शन जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे केमिस्ट्री सेक्शन। मेरे पास है सीरीज़ डी, आपके पास कोई और सीरीज़ भी होगी तो आप क्वेश्चंस देख लेना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 इज़ A person living in Shimla observed that cooking food without using pressure cooker takes more time. The reason for this observation is that at high एल्टीट्यूड पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ओके, सो जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, उसकी वजह से जो कुकिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। Question number 32. A substance which reacts with gangue to form material is called flux, slag or या फिर D catalyst. So it is slag. Option B. आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33. Which of the following statements is correct regarding rusting or corrosion? A. Iron rusts faster in saline water than in pure water. B. Less reactive metals are readily corroded. C. Air and moisture decreases corrosion. D. Corrosion occurs slowly at bends, scratches or cuts in metal. So जो right answer होगा, right statement होगी, वो होगी हमारी option A. That iron rusts faster in saline water than in pure water. ठीक है, option A. Okay, question number 34. A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end. अगर हम लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोते हैं तो उसके दूसरे सिरे पर क्या होगा? A. Becomes cold by the process of conduction. Becomes cold by the process of convection. Process of radiation. या फिर D. Does not become cold. Okay. So right answer आएगा आपका D. It does not become cold. ठीक है, क्योंकि जो वुडन है, जो वुड है वो पुअर कंडक्टर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35. फायर एक्सटिंग्विशिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू पुट ऑफ फायर व्हाइल यूजिंग दिस विच गैस इज कमिंग आउट। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। ओके, 36. Which method is commonly used to separate salt from water? Condensation, evaporation, filtration, sedimentation. So इसमें यूज़ किया जाता है evaporation का, वाष्पीकरण विधि का। 37. Vegetable oils on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst form fats. This is an example of addition reaction, substitution reaction, displacement reaction या फिर oxidation reaction. So it is एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए। 38. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर? कठोर जल में इनमें से किसका प्रयोग किया जा सकता है? सोप, डिटर्जेंट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। सो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन बी, डिटर्जेंट, क्योंकि जो सोप है वो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर देता है हार्ड वाटर में। ठीक है, सो ऑप्शन बी हो सकता है इसका सही आंसर। 39. Permanent hardness of water is due to the presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium. B. Chlorides and sulfates of sodium and potassium. Bicarbonates of sodium and potassium. D. Bicarbonates of calcium and magnesium. So right answer is option A. Chlorides and sulfates of calcium and magnesium. Option A. Okay. 40. A marble tile would feel cold as compared to wooden tile on a winter morning because the marble tile is better conductor of heat than wooden tile, is polished while wooden tile is not polished, reflect more heat than wooden tile, is a poor conductor. So right answer is option A. It is a better conductor of heat than the wooden tile. 41. Polycoat is obtained by mixing nylon and wool, polyester and wool, nylon and cotton, polyester and cotton. So it is polyester and cotton. बहुत ही इजी क्वेश्चन एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी थे जो रिपीट हुए हैं। 42. Which of the following is not a common property of plastics? इनमें से प्लास्टिक की कौन सा गुण नहीं है? नॉन रिएक्टिव,
लाइट इन वेट, ड्यूरेबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यस, नॉन रिएक्टिव होते हैं, लाइट इन वेट होंगे, ड्यूरेबल होंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होंगे। सो ऑप्शन डी। ओके, 43, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, अनलिमिटेड हैं क्या ये क्वांटिटी में, नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर, लिमिटेड हैं क्वांटिटी में, या फिर नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कोल वगैरह है तो एंड पेट्रोलियम है, वो लिमिटेड हैं क्वालिटी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आएगा इसका राइट आंसर। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन। सो इट इज़ आयरन, आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। 45, an iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will flow from iron ball to water, not flow from iron ball to water, or from water to iron ball. C, flow from water to iron ball, या फिर D, increase the temperature of both. So right answer is option B. दोनों का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो कोई भी फ्लो नहीं होगा। ओके, 46, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन नाम से ही पता लग रहा है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। सो इट इज कीटोन, C डबल बॉन्ड O, कीटोन। 47, ये रिएक्शन है, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे ये जो P2 है यहाँ पे आएगा Al2O3, ठीक है। Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। ये किस तरह का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स 2 कंपाउंड्स, दीज आर। इथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ और 2 प्रोडक्ट्स देगा, वो क्या प्रोडक्ट्स होंगे, सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन, सोडियम इथेनोएट एंड ऑक्सीजन, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, या फिर डी, सोडियम इथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। 49, an atom with 3 protons and 4 neutrons will have a valency of 3, 7, 1, 4. So it is C, 1. Question 50, number of valence electron in chloride ions are, number of valence electron 16, 8, 17, या फिर D, 18। बहुत ही easy, 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि Cl नेगेटिव है तो एक बढ़ जाएगा। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट into discovery of atomic nucleus, electron, proton, neutron. So it is atomic nucleus, option A. 52, which of the following contains maximum number of molecules, 1 gram of carbon dioxide, 1 gram of nitrogen, 1 gram of hydrogen, 1 gram of methane. So it is 1 gram of hydrogen, H2, option C. 53, a few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. Which one of the following represents a correct arrangement? So it is option C, oxygen, water, and electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is 1:1, 2:1, 4:1, या फिर D, 1:1. So it is 2:1, option B. 55, phosphorus is kept in, बहुत ही easy question, cold water, ammonia, kerosene, alcohol. So phosphorus को रखा जाता है cold water में और sodium को रखा जाता है kerosene में। 56, which of the following hydrocarbons undergo addition reaction? C2H6, C3H8, C3H6, C2H2। नीचे आपको अल्टरनेटिव्स भी बताए हैं इसमें कि कौन से हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें एडिशन रिएक्शन होता है। सो एडिशन रिएक्शन होगा
C3H6 में और C2H2 में। सो राइट आंसर क्या आएगा? 3 and 4, 3 and 4, ऑप्शन सी। ओके। 57, द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट करोजन इज निकल प्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग या फिर जिंक प्लेटिंग। सो जिंक की प्लेटिंग की जाती है कोरोजन से बचाने के लिए आयरन को। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। सो सोडियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, ठीक है। देन आएगा एल्यूमिनियम, सबको पता है एल्यूमिनियम में होंगे 3, देन सिलिकॉन में 4, देन आएगा फॉस्फोरस जिसमें होंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो राइट आंसर क्या आएगा हमारा? फॉस्फोरस, ऑप्शन डी, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 59, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस्ड बायोगैस। ये एक चेंज है। सेकेंड चेंज, द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज फ्यूल। देन आपको स्टेटमेंट्स देखनी है कि जो प्रोसेस ए है क्या ये केमिकल चेंज है, बी केमिकल चेंज है, दोनों केमिकल चेंजेस हैं या फिर इनमें से कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। सो जो प्रोसेस ए है एंड प्रोसेस बी ये दोनों हैं केमिकल चेंजेस। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ, सिरका किसका सोल्यूशन है? 50 to 60% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, 50 to 60% एसिटिक एसिड इन वाटर। सो इट इज़ 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, ऑप्शन सी। तो जो आपकी केमिस्ट्री सेक्शन थी इसके क्वेश्चन भी काफ़ी इजी रहे हैं। जो ओवरऑल जो पूरी हमारा मेडिकल टेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही मुझे लग रहा है इजी आया है, मॉडरेट बच्चे इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो आपको बताना है कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।